definite also. And today it is the turn of past continuous and past perfect continuous. Both the tense are very easy. Very easy. A slight difference is there between past continuous and past perfect continuous. So I hope you will understand and you will not leave the video even for a single minute. And one thing more, students, I will say to you, you are not doing assignment. In the comment box, please do all the assignment that I give. And secondly, don't hesitate to ask your problems from me. So subscribe me also so that you may get all the videos on time. So let us start. Present, past continuous. Past means भूतकाल जो बीत गया. Second form of the verb always comes. What is the second form? Again I am telling you. Went, saw. Tell me fast. Jumped, ed, played. Not necessary every time ed will come. Eat, ate, eaten. So this is the basic second form. That tells that we have entered into past tense. And now it is a turn past continuous. Continuous means the thing that is in continuation. रहा था, रहे थे, रही थी. प्रेजेंट होता तो इज एम आर, पास्ट आ गया तो वाज वर और साथ में आईएनजी. जब आईएनजी होगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सी was, were, ing and verb की first form. He was going, very simple. वह जा रहा था, रहे थे. Interrogative यदि बनाऊंगी, was he going? Negative. He was not going. This thing we have done many times, negative and interrogative. Now you must have learned very well in your mind. You have practiced a lot also. So this tense is very simple, past continuous. And after that, I can do a practice more so that you may also have the better knowledge. We can say just as, was I going? Were you going? Were we going? Was he going? Was she going? Was Ram going? Was Sita going? And were they going? Was कहाँ लगता है? Singular में. Was singular, एक. जैसे I, he, she, एक हो, वहां was. और were कहाँ लगेगा? जहां plural. बहुत बेसिक नॉलेज है, बहुत बेसिक. बहुवचन, जैसे they, बहुत सारी चीजें, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? वर. सो clear to you all this thing? And now I am coming to past perfect continuous. If you remember present perfect continuous, the same rules will be following here. Just as we had done has been going plus for or since use. In the same manner, instead of has, I will put had. And the same rules will be the just as you had done in the present tense. वह 2 घंटे से पढ़ रहा था. He had been reading for 2
एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। देखिए, सबसे पहचान बड़ी इसकी ये है, टाइम विल बी गिवन। रहा था, रहे थे, रही थी, ये तो कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है। जैसे मैं जा रहा था, ये तो कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है। तो भाई अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ, हम कह देंगे वह 2 घंटे से जा रहा था। जब समय आ जाए बच्चों तो समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये बात आप समझ जाना। यदि समय दे रखा होगा, टाइम, टाइम इसकी मेन पहचान है, यही मेन अंतर है। और इसी टाइम की वजह से 2-3 वर्ड्स हमारे और जुड़ गए। हैड परफेक्ट है तो हैड तो आएगा ही आएगा बच्चों। हैड साथ में क्या लग गया? बीन प्लस आईएनजी। देखिए टाइम तो हो ही गया क्लियर। हैड बीन, आईएनजी और फॉर और सिंस लगेगा। फॉर और सिंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, कई बार बता दिया। एक बार प्रेपोजिशन में बताया था, वीडियो देखना प्रेपोजिशन की खोलकर। एक बार मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर और सिंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आ रही तो। और तीसरी बार मैं आपको अब बता रही हूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? फॉर या सिंस। फॉर कब लगाते हैं? जब अनिश्चित समय हो। वह 2 घंटे से जा रहा था, वह कुछ समय से पढ़ रही थी। अरे भी समय नहीं पता, कुछ समय दे रखा है, बहुत समय से वह जो है परेशान है। ये भी आपका अनिश्चित काल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? सन, वार, बजे, जब से। सन का मतलब सन 1984, ट्यूसडे, वार हो गया। सन, वार, बजे 2 o'clock। आप लिख भी सकते हैं, कॉपी तैयार रखा करें अपने पास। 2 o'clock 2 बजे, सन, वार, बजे, जब से वह वहां से आया है तब से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे करके हम ये बनाते हैं। अब देखिए, he had been playing for 2 hours, 2 घंटे से खेल रहा था। अब इसको सिंस में कन्वर्ट करवाएंगे क्या? सिंस में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? he had been playing since 4 o'clock, 4 बजे से। एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसीलिए सिंस आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करके ऐसे आप सेंटेंस बनाइएगा। इसमें भी इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड को जाहिर सी बात है, हैड सबसे पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन है। तो हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? कुछ भी लगा लो। हैड आई बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, बाकी वही रहेगा। और यदि नेगेटिव होगा तो नॉट बीच में लगा देंगे। आई हैड नॉट किसके बीच में? हैड के और बीन के, हैड के और बीन के। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। तो इस तरह से करके आप बनाएंगे, इनकी गर्दान बनाइएगा। अब देखने में तो लग रहा है कि अरे भाई वाही तो बहुत आसान है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जब आप इनको एक मिक्स फॉर्म में करोगे, एक मिक्स असाइनमेंट में करोगे, तब आपको दिक्कत आएगी। देखिए बच्चों, कुछ पाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो संभव नहीं है। तो इसकी हम गर्दान भी बना सकते हैं। आई क्या बनाएंगे? कुछ भी आप यहां से लेकर बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान मैं आपको बनवा देती हूं। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, शी हैड बीन प्लेइंग। कोई
हैज का चक्कर नहीं है, SEIS का कोई चक्कर नहीं है, आपको सीधा सीधा हेड लगाना है। बहुत ही आसान टेंस है, हेड भी लगेगा, बीन भी लगेगा, ING भी लगेगा। तो इसको आप कॉपी निकाल के नोट्स लेना शुरू कीजिए, आज ही इसको करना शुरू कर दे बच्चों। कल की वेट मत करना कि मैडम कल कर लेंगे, नो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। जो कुछ करना है अभी करो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। So students, please start doing and send me your work in the comment box. I will check immediately and I will send. So thanks a lot. Bye students.